लिखना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लैम्डा यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ इस पे। जैसे कि आप फंक्शन बना सकते हो, लैम्डा कैन हैव मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स बट सिंगल एक्सप्रेशन, ये तो पता है ना। फॉर एग्जांपल लैम्डा एक्स कॉमा वाई, ओके, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर यू हैव सिंगल expression, right? And here you have multiple argument. So a lambda function can have a multiple argument but single expression. दो तीन expressions नहीं हो सकते आपका। So अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं of which type, lambda type, okay, lambda ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हैं तो you can do that also. For example x is equals to lambda of like this. अच्छा, equals to नहीं होता है यहाँ पर, expression होता है like this, colon. So now x is your lambda object. What it means is you can pass the value of x and y. अच्छा, यहाँ पर x मैंने पास किया एज अ आर्गुमेंट, तो मैं इसको वेरिएबल a कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज वेरिएबल a. सो आर्गुमेंट में आपका लैम्डा फंक्शन में देयर आर टू आर्गुमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड एंड a is your lambda object. What it means is you can pass two values to this object. For example, a is equals to 2, 3 and the output will be 5. Is it clear ना? इस पे तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, बिकॉज a is ऑब्जेक्ट, इसके पास भी दो आर्गुमेंट्स हैं, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो नाउ लेट्स सी व्हाट आर मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस फंक्शन। देखो, मैपिंग हमें तब करना होता है व्हेन वी वांट टू do some operation on each and every element of a list of a tuple of any iterable. For example, let's say I have a list, list 1 is equals to, we have some values here 1 2 3 4 5 6, let's say, and I want to do some operation on each and every element of this list. For example, I want to find all the even numbers from this list. So what I have to do is I have to perform an operation on each and every element, and I have to check for this condition where this is the case, x modulus 2 is equals to 0. I want to perform this operation. अच्छा, this is called filtering out some data. अच्छा, filter नहीं बता रहा हूँ, मैपिंग करना है मुझे, तो मुझे क्या करना होगा, मैप फंक्शन यूज करना होगा। एंड मैप क्या क्या लेता है आपका, तो फंक्शन and the iterable, okay. For example, ये आपको मैं फिल्टर बताने लगा था, okay. List 1, let's say we have list 1 and we have some string values here, apple and cherry, like this, okay. So what I want the output in capital letters, apple in capital and cherry in capital, like this. So what I have to do, I have to do some mapping on each element of this list. So what I have to do is map and the function पे आप क्या यूज कर सकते हो, lambda function, and what will be the expression, lambda x, okay. X will be the element coming from the iterable, and iterable यहाँ पर आपका क्या होगा, your list. So let's say lambda x dot upper comma iterable is list 1, okay. So this is your iterable list 1. From this list you will get the element apple and you will perform what you will perform, x dot upper, यानी कि apple dot upper. So it will capitalize all the letters of this string apple, and you want the mapping, तो mapping object create होगा इस केस में। बट अगर आपको लिस्ट के फॉर्म पे आउटपुट चाहिए like this, apple like this, so you have to pass it in a list. So list map lambda like this, so it will give you the output which you want, like this. आप करके देखो। So यहाँ पर आपने क्या किया, आपने मैप किया। What you map, आप क्या मैप कर रहे हो, you are mapping x dot upper on each and every element of the list. Similarly, you can do any operation. Let's say you want to lowercase, you want to capitalize, you want to split the data, whatever you want. You want some other operations also. For example, you want to multiply your list with 2, okay, you can do that also.
So all you have to do is you have to create your lambda function. अच्छा, let's do this. आप लोग भी कर रहे हो या मैं ही कर रहा हूँ? मुझे ही दिखाना है. हाँ, okay. मैं कर देता हूँ. Let's say I have my list 1 equals to we have 3 elements in our list, and what I want to do is I want to do some mapping, and the function lambda x colon and x dot upper, right, comma iterable list 1. That's it. Now let's run this. See, I have created a map type object, means operations to perform हुए हैं, mapping भी हुआ है, but we are unable to see the elements at in that object, है ना. map type object आपका create हुआ है. So उस object के अंदर जो operations perform हुआ है, यानी apple, cherry और mango जो capital letters में आया है, if you want to see that, I have to convert it in the list format. Okay, see what I have got now. Okay, this is how you do mapping. Let's say I have some other list 2 is equals to I have some numbers and I want to perform mapping on this. What should we do now? आप बताओ, अगर आपको कुछ आइडिया आ रहा है कि ऐसा कुछ करते हैं तो मैं कर देता हूँ. x dot मल्टीप्लाई करना, लेट्स से स्क्वायर करते हैं फ्रॉम द लिस्ट 2 1 4 9 16 25 एंड 25. so, अभी हम मैपिंग कर रहे हैं. अच्छा, हम मैपिंग और भी चीज़ों कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव सम वैल्यू हियर लिस्ट 3 इज इक्वल्स टू एंड अच्छा, मैं आप कुछ बता सकते हो. लेट्स से कि मुझे आउटपुट चाहिए, ये आउटपुट चाहिए मुझे 1 2 3 4. मुझे आउटपुट में ये चाहिए और मैं इनपुट में आपको दे रहा हूँ. मुझे इनपुट में देना है इसे इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 4. दैट्स इट. मैं इनपुट में ये देना चाहता हूँ और मुझे आउटपुट में ये चाहिए. ऑल elements in the string format. Can we do that? क्या लैम्डा में पास कर देते हैं ना, लैम्डा x और उसके बाद कॉलन के बाद string of x. String of x. Okay, let's do that. List 3. lambda of x क्या करना है आपको, str of x. That's it. yes. और इसमें लिस्ट पास कर देते हैं, list 3 1 2 3 4. okay, we have got that. और भी कुछ कर सकते हैं. और भी मतलब हमने तो उसकी मतलब डेटा टाइप ही चेंज करना. 1 सेकेंड. str देखो, एक ये भी टेक्निक है. मैंने फंक्शन क्या लिख दिया, सीधे str. अब वो तो मतलब ये str एक फंक्शन है ना, लाइक अगर लेकिन वो डॉट के साथ जैसे वो मेथड है, मेथड यूज नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी फंक्शन हो जो मतलब इनबिल्ट हो वो यूज कर ही सकते हैं. यू कैन कॉल दैट फंक्शन. ओके, तो आप किसी भी इंट टाइप वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, या str को आप इंट में डायरेक्टली आप बस उस फंक्शन का नाम लिख दो, इट विल कन्वर्ट योर वैल्यू. अच्छा, हम लैम्डा फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पर. वी कैन ऑल्सो क्रिएट अवर ओन जनरल फंक्शन. ओके, एंड देन वी कैन कॉल दैट फंक्शन हियर. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या किया है, एक्सपोनेंशिएशन किया है x का. ओके, सो वी कैन क्रिएट अ फंक्शन
our own function, let's say power of, okay, and this will take some argument from the user, let's say n, and it will return some value that is n exponentiation of 2. Okay, that's it. And now let's use this same values here. Let's say this is list 4 and I have these values 1 2 3 4 5 and 5. So अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर लैम्डा फंक्शन की जगह आई कैन राइट अवर पावर ऑफ सिंपली पावर ऑफ और बैक ये आर्गुमेंट भी देना है, दैट इज बैकस्लैश n. करके देखें, लेट्स सी वी हैव गॉट द आउटपुट 1 4 9 16 25. ओके, और अगर यहाँ पर देता हूँ let's say argument n, then name n is not defined. What is n? एक्चुअली यहाँ पे जो n पास कर रहे हैं you just हाँ आपको उस फंक्शन को सिर्फ कॉल करना है. वो मैप विल टेक केयर की मैप क्या कर रहे हैं, आपका आइट्रेबल लिस्ट 2 से एलिमेंट ले रहे हैं और फंक्शन को जो भी चाहिए, फंक्शन दैट इज पावर ऑफ को जो भी आर्गुमेंट चाहिए वो आपका कहाँ से आ रहा है, आइट्रेबल लिस्ट 2 से. ओह सॉरी, अच्छा ये गलत हो रहा था क्या, लिस्ट 2 मैंने क्यों लिखा है, लिस्ट 4 होना चाहिए ना, अभी सही है लिस्ट 4. ओके सही है ना. समझ में आ रहा है. मैप विल टेक, हाँ कुछ कह रहे हो. मैं कह रहा था मतलब ऊपर फंक्शन कॉल करने की मतलब जरूरत कहाँ, जैसे हमने डिफाइन करा पावर ऑफ एन रिटर्न करा दिया तो उसको तो मतलब अच्छा ठीक है यहाँ लिस्ट में कॉल कर रहे हैं. हाँ उसको हम मैप के अंदर कॉल कर रहे हैं. ध्यान रखना लिस्ट मैंने इसलिए लिखा है so that we can see the output in the list format. Otherwise मैप ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो रहा है, ठीक है. अभी मैंने पहले दिखाया था आपको, सिर्फ आप मैप कर रहे हो तो मैप तो हो रहा है बट यू आर अनएबल टू सी द वैल्यूज इनसाइड दैट. हमें क्या मिल रहा है, इस एड्रेस पे आपका मैप ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना. सो इस एड्रेस पे जो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज है वो देखना है, तो लिस्ट टाइप में हमें कन्वर्ट करना होगा इसे लाइक दिस. समझ में आया मैप क्या कर रहा है. अभी हम इसके और एग्जांपल्स भी करेंगे, एक्सरसाइजेस मैंने बनाया है इस पे. अभी ये हो गया मैप आपका. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज फिल्टर, हाउ टू डू फिल्टरिंग. Let's say we have list 1 and we have some values here and I want to find the values which are multiples of 3. Can we get that? Means I want 3 6 as the output है ना. 3 and 6 are the multiples of 3. So what we have to do is फिल्टर का भी आपका सेम सिंटैक्स है. मींस फिल्टर विल आस्क फॉर अ फंक्शन एंड अ आइट्रेबल, बट फिल्टर क्या करेगा, इट विल गिव यू द आउटपुट जहां पर आपका कंडीशन ट्रू हो रहा है, जहां पर आपका फंक्शन में आपने जो भी कंडीशन दिया है वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है वो देगा आपको. तो अब बताओ यहाँ पर क्या करें, फंक्शन में क्या देना होगा मुझे. लेट्स से लैम्डा फंक्शन लैम्डा एक्स एंड नाउ आइट्रेबल की जगह आपका क्या आ रहा है, योर लिस्ट 1. ओके, यानी x में आपको एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2, एक बार 3 आ रहा है. तो मुझे कंडीशन क्या देना है, मुझे चाहिए मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 है ना, एंड हैव आर्गुमेंट x मॉडुलस 3 0. यस, ओके, x मॉडुलस 3 इक्वल्स टू 0. यही करना है ना. सो वी विल filter out that data. Again देखो ये आपका filter type object create हो रहा है. Now if you want to see the output, what we have to do is list filter and this. See we have got 3 and 6. तो filter हम यूज करके क्या कर पा रहे हैं, we are able to filter out those data जहां पर आपका lambda function satisfy हो रहा है. Again यहाँ पर भी आप जनरल फंक्शन लिख सकते हो कहीं बाहर और उस फंक्शन को सिर्फ कॉल कर सकते हो इस फिल्टर के अंदर. ओके, इट विल डू द सेम वर्क.
समझ में आ रहा है? लेट्स से अनदर एग्जांपल, let's say we have some list to, we have India, we have some, नहीं India नहीं, soap, sand, shark, shit. मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसे स्ट्रिंग वैल्यूज को फिल्टर करना है which are starting with S and ending with P, समझ रहे हो? यानी आउटपुट मुझे क्या चाहिए, I want soap and shark. See, these words are starting with the letter S, है ना, and ending with the letter P. So I want to filter those data, those string values which are starting with S and ending with the letter P. कैसे करना होगा? एनी आइडिया? स्ट्रिंग का कुछ मेथड पता है? कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे इफ मतलब जो है। ओके आप बताओ। ऐसे ओके आप बताओ। लो मैंने फिल्टर यूज किया, अब फंक्शन मैं लिख रहा हूँ, क्या लैम्डा लगाना है? लैम्डा एक्स उसके बाद नहीं इसमें मतलब ये लूप लगाना पड़ेगा। लूप लगाना पड़ेगा। और भी कुछ है स्ट्रिंग में आपको पता है? देयर इज अ मेथड कॉल्ड स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ फॉर स्ट्रिंग वैल्यूज। सो x डॉट स्टार्ट्स विथ, यानी कि किससे स्टार्ट हो रहा है। लेट यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, s, और आपने एंड पढ़ा है, एंड क्या करेगा, जब दोनों ट्रू होगा तब वो वैल्यू रिटर्न होगा। ओके, एंड x डॉट एंड्स विथ, ओके, और एंड्स विथ व्हाट, p, और आइट्रेबल अब आपको देना है, दैट आइट्रेबल नेम इज list2। देख रहे हो, ये आपको समझ में आ रहा है आप क्या लिखा है? ओके, दिस इज योर सिंगल एक्सप्रेशन। सी, दो एक्सप्रेशन नहीं यहाँ पर, दिस इज योर सिंगल एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय दिस लॉजिकल एंड। तो अब जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी वो वैल्यू रिटर्न होगी। ओके, सो नाउ लेट्स सी। ओके, वी हैव गॉट द आउटपुट सोप एंड शार्क। समझ रहे हो? So this is how you can filter out your data from a particular iterable element. अच्छा, और भी कुछ कर सकते हैं आप इस पे? ये जो चैप्टर आप करा रहे हो हमें, आप ये सब प्रैक्टिस के जैसे वो में फाइल होती है, जैसे हम पहले लेते थे ना, कुछ के हमें व्हाट्सएप पे आ जाता था, हम प्रैक्टिस करते थे उससे। हाँ तो वैसा मिलेगा नहीं क्या ये चैप्टर जो आप करा रहे हो हमें कभी करने के लिए? हम अरे मैं अभी भेज क्लास में जो है ना, आपको मैं आज ही भेज दूंगा। हाँ, आप इसे ट्राई करना, ठीक है? बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैंने मेंशन किया, एक्सरसाइज बनी हुई है, ठीक है? हाँ, वो मतलब ये जो हम कर रहे हैं ना, ये क्लास का जो भी मतलब यहाँ पे ये आप शेयर कर देना ग्रुप में। हाँ, ये तो आपको शेयर कर ही दूंगा। नई फाइल देखो क्रिएट किया हूँ खुद ही मैं, इसको मैं यही शेयर भी कर दूंगा। तो ये हो गया फिल्टर। फिल्टर में समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? प्रोसेस यही होना है। ओके, एक्सरसाइजेस में और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सो अभी हम देखते हैं रिड्यूस बच गए, ठीक है? रिड्यूस, अरे यार क्या हो गया? देखो, रिड्यूस का थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है, और रिड्यूस यूज करने के लिए आपको इनबिल्ट मॉड्यूल को कॉल करना पड़ेगा, एंड दैट and the name of that inbuilt module is function tools. Okay, so what I have to do is import from function tool, from tools, import what I want to import. I want to import the reduce function. Now I can use reduce. Okay, so before that
I must tell you what is reduce, the working of reduce. Suppose you have some value in a list, 2, 4, 6, 1, 3, 2. Okay, you want to add the elements of your list. You want the sum of all the elements in your list. 2 plus 4 plus 6 plus 1, like this you want the sum. So ये आप reduce use करके भी कर सकते हो, reduce function. So इसमें आपका क्या होगा, reduce function will take two arguments from the iterable, that is x and y, like this. Okay, so what it will do is, in the first iteration it will add your both arguments, that is x and y, means it will add 2 and 4 and the output will be stored in x. Let's say 2 plus 4 is 6. Okay, so now your x value is 6 and the next value is your y value. So 6 plus 6, again it will be stored in x, that is 12. Okay, and 12, the next value is y. 12 plus 1, that is 13. The next value is again y and this is your x. 13 plus 3 will be 16. It's like Fibonacci series. 16 plus 2 what? Which series? Fibonacci series. Okay, हाँ, you can say that. वहाँ पर क्या होता है आपका 0, 1, then इन दोनों का सम 1, 1, 1 का सम 2, 2, 1 का सम 3, like that, है ना? तो लेकिन वहाँ पर आप क्या करते हो, you generate a series. यहाँ पर आपको सीरीज से उल्टा चलना है. You have to get a number by adding. देखो यहाँ पर क्या कर रहे हो, you have a list और उसे रिड्यूस करते 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 you are getting a single value here. यहाँ पर आपको सिंगल वैल्यू मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको लिस्ट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लिस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है. जैसे आपने मैप में यूज किया था लिस्ट मैप, लिस्ट फिल्टर, है ना, फिल्टर में भी यूज किया है. लेकिन इन केस ऑफ रिड्यूस यू नीड नॉट टू यूज लिस्ट, बिकॉज रिड्यूस आपका फंक्शन है विच इज रिटर्निंग सम वैल्यू. तो 18 लास्ट में आउटपुट आ रहा है, तो इट विल रिटर्न द वैल्यू 18 सिंपली. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ दिस इज वर्किंग. Import reduce. Let's say I have my list 3 as 2, 1, 2, 3, 4, 5, and what I want to do, I want to reduce. Again it will take a function and an iterable to reduce करो, and the function is what you want to perform. You want to perform, अच्छा, I have told you it will take two arguments, so x, y. अच्छा, ये reduce जो है, मतलब हम इसको import कर रहे हैं, तो मतलब ये independent function नहीं है, right? No, it's not an independent function. ये आपका function tools में defined है. Like जैसे filter और मतलब map करा वो तो independent है. हाँ, वो जैसे ही आप अपने Python फाइल खोलते हो तो they are already present there. You can just use those functions. हाँ. तो मतलब ये मतलब कहाँ से कौन से function पे मतलब किसका पार्ट है? फंक्शन टूल्स, ये मैंने लिखा था ना, फंक्शन टूल्स लाइब्रेरी मॉड्यूल. हाँ, वो तो ठीक है, वो तो मैं समझ गया. हाँ. मैं कह रहा था कि जैसे मतलब ये नाम से कैसे पता चलेगा, लाइक जैसे फिल्टर है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये रिड्यूस है, जैसे आपको तो पता था तो आपने इंपोर्ट कर दिया, लेकिन जब मैं यूज करूंगा तो ये मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये मतलब इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, ये किसी मतलब पार्ट है एक फंक्शन का, एक फंक्शन. अरे इसीलिए तो आप पढ़ रहे हो ना, मैंने आपको बताया ना, मुझे भी ऐसे किसी ने बताया था कि टू यूज रिड्यूस यू हैव टू इंपोर्ट इट फ्रॉम द फंक्शन टूल्स मॉड्यूल, है ना. अच्छा नहीं, मैं मतलब कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं ऐसा कुछ नहीं है. अब देखो ना, अभी मैंने कमेंट किया फर्स्ट लाइन पे, ठीक है, यूज करते हैं रिड्यूस को, रिड्यूस x प्लस y हमने ये किया, और आइटरेबल कहाँ से लेगा, ये लिस्ट 3 से, ठीक है. सो लिस्ट 3 से इस बार दो वैल्यूज उठेंगी, दैट इज 1 एंड 2. तो x में आपका क्या जाएगा 1 और y में क्या जाएगा आपका 2. 1 प्लस 2 होगा 3 और 3 किस में स्टोर होगा, x में. नेक्स्ट आइटरेशन में एक वैल्यू आएगा दैट इज 3, तो 3 प्लस 3 जो भी आउटपुट आएगा x में. पहली बार में आपकी दो वैल्यूज उठेंगी 1 और 2, उसके बाद एक एक वैल्यूज ऐड होगी उस पे, ठीक है. अभी मैं इसको करता हूँ, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट. क्या बोल रहे हैं,
इनवैलिड सिंटैक्स, ओके लैम्बडा, ओके अभी लैम्बडा इनिशियलाइज लिखा है, फिर से रन करो। देखो क्या कह रहा है, नेम रिड्यूस इज नॉट डिफाइंड बट इन केस ऑफ मैप और फिल्टर वी वर गेटिंग द मैप टाइप ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, लेट्स इंपोर्ट अवर फंक्शन फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। देखो वी हैव गॉट आउटपुट एज 15। अच्छा आउटपुट तो हम डायरेक्टली मतलब सम करके नहीं निकाल सकते लिस्ट में? सम करके बिल्कुल, अरे बिल्कुल आप कर सकते हो, देयर आर इनबिल्ट फंक्शंस फॉर अ लिस्ट, है ना, फॉर अ लिस्ट बिल्कुल। so, आप व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मतलब सम और ये मतलब रिड्यूस फंक्शन? दोनों में डिफरेंस, क्योंकि मतलब काम तो सेम ही है। हाँ, सम करके भी मेरे को मतलब सेम ही टेबल का जो है मतलब सारे एडिशन मतलब आउटपुट आ रहा है। ऐसा नहीं है ना कि आप इसको इस ऑपरेशन के लिए यूज करोगे, यू कैन यूज रिड्यूस टू डू दिस टास्क आल्सो। लेकिन अभी जो मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, क्या इसको आप कर सकते हो फ्रॉम द सम मेथड? हाँ बताता हूँ, एक सेकंड होल्ड करो। ओके ओके बाय। हेलो, सम न्यूमेरिकल के यूज होता है ना, तो वही मैं कह रहा था ना कि लेट्स से कि अभी आपका स्ट्रिंग वैल्यूज है, अब इसे आप रिड्यूस कर सकते हो इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग। 3 स्ट्रिंग है आपके पास, दैट इज आई, लव एंड पाइथन, 3 स्ट्रिंग। इन तीनों स्ट्रिंग को आप सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग रिड्यूस। सो यहाँ पर आप देखो रिड्यूस का फंक्शन है वो तो आप यहाँ पर ऐसे यूज कर पा रहे हो, उसे ऐड कर पा रहे हो, मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, लेकिन अब आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है लाइक दिस, तो आप वहाँ रिड्यूस यूज करोगे। मैप से ही कर सकते हैं। फिर तो मैप में मैं क्या करूंगा कि स्ट्रिंग का जो है कॉन्केटेट वो मतलब लैम्बडा यूज करके, हाँ तो वहां से भी हो जाएगा। फिर मतलब रिड्यूस का जो मतलब एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन है रिड्यूस, इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या होगा फिर मतलब मैप से आप, अच्छा आप इसको मैप से कैसे करोगे जरा मुझे बताओ। मैप में फंक्शन लाइक जैसे कोई फंक्शन बना लो ना, फिर से मतलब खुद यूजर डिफाइंड जिसमें मतलब सोचो, आप सोचो ना, मैप से आप क्या कर सकते हो, मैप में आप हर एक एलिमेंट पे आइटरेट करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो बस, लेकिन इनको रिड्यूस कर सकते हो, कॉमा हटा पाओगे मैप से? मैप पे कॉमा हर एक बार आइटरेबल आपको मिलेगा, आप ट्राई करो। इसके बाद मैं आपको रिड्यूस से इसको बता रहा हूँ कैसे हो रहा है, आप मैप से अभी करना, ठीक। देखो रिड्यूस से आप कैसे करोगे इसको बताओ, लेट्स से रिड्यूस and lambda again reduce will take 2 arguments that is x comma y, और आपको पहली बार में आपको x में क्या आएगा I एंड y में क्या आएगा love, ओके 2 स्ट्रिंग्स आया। अब इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपको क्या करना है, you want to concatenate them, okay, so x plus you want some spaces between them, तो comma space plus y, fine, done, let's see, comma and then iterable of course list 4, हाँ done, see सिंपल है इसे करना इन कंपैरिजन टू दैट मैपिंग। अब मैप से जरा बताओ क्या करोगे आप, मैप से ऐसा कौन सा ऑपरेशन यहाँ करोगे, लेट्स से आप पहली बार में आपको मिला आई, ओके देखते हैं कर सकते हो या नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम है, लॉजिक की बात है, क्या क्या लगता जा रहा है। आप यहाँ पर यूज करोगे उसको आइटरेट करने के लिए फंक्शन आप यूज कर रहे हो, फंक्शन में ही वो स्टोर होना है। मैप आप कराना चाह रहे हो, उसके बाद यू वांट टू परफॉर्म लिस्ट हियर, ठीक है, ये 1 2 1 2, ओके। अब आप x लिया आपने, x में एक ही आर्गुमेंट ले सकते हो, तो एक बार आपको आया x। अब बताओ इसमें मैं क्या करूँ, फंक्शन इनसाइड द मैप। एक चीज आप बाहर होते, अगर मैप नहीं यूज कर रहे होते तो इजीली कर लेते, लेट से आपके पास, अच्छा इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या, एम्प्टी लिस्ट के बाद लिस्ट 4 और उसका x एलिमेंट और प्लस x प्लस 1 एलिमेंट, x एलिमेंट प्लस x 4 का x एलिमेंट, लाइक if x इक्वल टू 0 तो लिस्ट 4 का 0 और प्लस नेक्स्ट वाला नहीं, ऐसा नहीं, 0 प्लस 1, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा।
आप हाँ आप मैप नहीं यूज करते तो आप इजीली कर पाते, बता तो नहीं। जैसे क्या करते हैं आप वहाँ लिस्ट डॉट अपेंड करते, लेट्स सी अभी यहाँ से कुछ कर पाते हो। अपेंड में क्या करना है, एक्स ले रहे हो ना, ठीक है। एक्स आपका यहाँ से आ रहे हो, ली क्या है, योर एम्प्टी लिस्ट, ली डॉट अपेंड एक्स, तो आई आएगा उसमें अपेंड करो। लेट्स सी लिस्ट नन कुछ नहीं रिटर्न हो रहा है एक्स में। एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बट वो मतलब समथिंग जैसे आइटरेट कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए एक्स तो यूज कर सकते हैं ना वहाँ पे। हाँ एक्स तो यूज, हाँ तो लिस्ट 4 का एक्स एलिमेंट और प्लस लिस्ट 4 का एक्स प्लस 1 एलिमेंट। अच्छा समझा मैं आप क्या कह रहे हो। आप क्या कह रहे हो, लिस्ट 4 का एक्स एलिमेंट लाइक दिस, तो एक्स में तो आपका एलिमेंट आ रहा है ना, इंडेक्स तो आ नहीं रहा है। अच्छा हाँ इंडेक्स नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लेंथ ले लो, लेंथ लोगे नहीं, रेंज लो। रेंज में आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ लिस्ट 4। एक्चुअली क्या ना लेंथ मतलब डेटा टाइप भी तो सेम ही है, तो अगर डायरेक्ट एडिशन करें तो भी तो कॉन्केटेनेट तो हो ही जाएगा। तो लेंथ लेने नहीं, लेंथ अगर हम ले रहे हैं तो हमें लिस्ट 4 का लेंथ मिलेगा, दैट इज 3। अब रेंज हमारा क्या होगा, 0 से 3 यानी 0 1 2, और आई का इंडेक्स भी है 0, ये है 1, ये है 2। तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो उस हिसाब से अब ये हो रहा है लिस्ट 4 एक्स पे आपका इंडेक्स वैल्यू आ रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस इसमें ऐड कर दो नेक्स्ट एलिमेंट व्हिच इज x + 1। लिस्ट 4 x + 1, ये अगर 0 है तो ठीक है, 0 और 0 1 का, और 1 है तो मतलब 1 पे वो आ जाएगा ना, मतलब जो अभी लेटेस्ट एडिशन होगा। अरे ये कैसे होगा, ये तो पे रुक जाएगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। देखो एक एक ऑपरेशन सब पे कर सकते हो, उन्हें रिटर्न कर सकते हो, इसलिए तो उसे मैप कहा गया है। अगर ये चीज मैप से कर लेते तो रिड्यूस क्यों बनाते। हाँ ठीक है, इसलिए यहीं पे रुक जाएगा, मतलब फर्स्ट 2 को ऐड करेंगे उसके बाद आगे जाएगा। हाँ ठीक है वो रिटर्न नहीं होगा, इससे नहीं होगा। आप इससे देख लियो, रिड्यूस से ये हो रहा है। रिड्यूस में आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लिख सकते हो एक्चुअली में। आप 5, अच्छा फैक्टोरियल निकाल सकते हो किसी का। लेट्स से आप यूजर से इनपुट लो, इनपुट देता है यूजर 5, ओके। 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 5 × 4 × 2 3 है ना, 3 × 2 × 1, बताओ इजली हो जाएगा ये रिड्यूस का यूज करके, हो जाएगा। लैम्डा में xy और मतलब ये रिड्यूस यूज कर सकते हो, क्यों नहीं यूज करते हो। अभी मैंने थोड़ा सा हिंट भी दिया था इससे पहले वाले में, बस वही यूज करना है, रेंज यूज करना है आपको। रेंज तो यूज करना है, रेंज 5। देखो कैसे करोगे इसको, लेट्स से आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, इनपुट में इनपुट, ओके। अब आप क्या करोगे, रिड्यूस लैम्डा x, अब अच्छा 2 वैल्यूज चाहिए होगा, x, y कोलन एंड देन यू वांट x × y। अब कहाँ से चाहिए, द आइटरेबल क्या होगा आपका इस केस में, इनपुट है ना, लेकिन इनपुट नहीं होगा सिर्फ यहाँ पर, आपका रेंज होगा, रेंज इनपुट। अच्छा आप बताओ, अभी यहाँ पर 2 गलतियां हैं। पहली गलती आप बता सकते हो, पहली गलती इनपुट में आपकी पहली गलती है, हाँ इटरेबल नहीं है। इटरेबल नहीं है, इट इज एक्चुअली आपका जो यूजर से इनपुट आ रहा है वो स्ट्रिंग टाइप है। हाँ वही ठीक है, तो स्ट्रिंग टाइप है तो उसमें मल्टीप्लाई कैसे कर पाओगे, तो यहाँ पर आपको कास्टिंग करनी पड़ेगी पहले, तो इंट टाइप की वैल्यू। ठीक, अब आपको लेट से यूजर ने 5 दिया, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to 4, यानी 0 आपको एक बार मिलेगा इसमें, यानी कि अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ, रेंज इनपुट ऑफ 0 रिड्यूस लेट से 5 इंटर, आउटपुट में क्या मिल रहा है
जीरो क्यों मिल रहा है? बिकॉज जीरो इज देयर, और जीरो का मल्टीप्लीकेशन किसी से भी हो जीरो मिलेगा। तो आपको क्या करना है? रेंज फ्रॉम 1 टू इनपुट, है ना? तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? 24। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। 5 का फैक्टोरियल देखो, 5 4 जा 20, 23 जा 60, पहले ही 60 आ गया, अभी 24 में ही है। तो ये आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ इतने का फैक्टोरियल मिल रहा है, दैट इज 4 3 2 एंड 1 का। समझ रहे हो? तो यहाँ मुझे क्या करना होगा? इनपुट प्लस 1। अब आपको करेक्ट फैक्टोरियल मिलेगा, दैट इज 5 to 120। तो देख रहे हो, यू कैन यूज रिड्यूस ऑन मैनी प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रिंग के साथ, रेंज के साथ, एंड विद द नंबर्स ऑल्सो। ठीक है, अब मैप में ही आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप कर रहे हो साथ में? नहीं, अभी तो सिस्टम ओपन नहीं है। नहीं कर रहे हो? आप क्वेश्चन तो दे। अच्छा, थोड़ा सा मैम बुलाई थी, मैं सोचा आपको दे दूं, इसको ट्राई करते रहते हैं। हाँ, कोई नहीं, आप क्वेश्चन दे दो, आप मतलब क्या पुलकित है ना साथ में? ओके, आज उत्कर्ष नहीं आया। पुलकित आप और उत्कर्ष साथ में करते हो ना क्लास? वो पिछले 2 बार ही से हो रहा है, वैसे ऐसा नहीं होता हमारा। अच्छा, अंबुज, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा? हाँ, अंबुज वर्मा। पुलकित सेठी। हाँ, पुलकित सेठी। सेठी, ओके। ठीक है, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, समझ गए होगे? अंबुज वर्मा, पुलकित सेठी। पुलकित सेठी, ठीक है, एक साथ, अलग अलग नहीं, एक स्ट्रिंग में। ठीक है, ये आपका एक स्ट्रिंग, ये आपका एक स्ट्रिंग। क्या यूज होगा जरा सोचो, कॉपी में लिखो, मुझे 5 मिनट लगेगा जहां तक है, मैं आ रहा हूँ। ओके ओके, नहीं, ठीक है। सो यू हैव टू गिव दैट नंबर ऑफ आर्गुमेंट, जितने नंबर ऑफ आइटरेबल आप देना चाहते हो। तो आप मल्टीपल आइटरेबल भी दे सकते हो इन द मैप केस। ओके, यही चीज हम फिल्टर पे भी कर सकते हैं। फिल्टर में भी कर सकते हैं यही चीज। नहीं, फिल्टर में तो मतलब एडिशन, उसमें तो मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू या कंडीशन पास करके मतलब फिल्टर आउट करते हैं। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं आ सकता है? सोच के देखो, चलो ट्राई करना इसी क्वेश्चन को। हाँ ठीक, मैं इस पे मेंशन कर दूंगा। मल्टीपल इटरेबल ले सकते हैं किस पे? फिल्टर में। फिल्टर पे ना, वही तो कह रहा हूँ, आप इसको ट्राई करो, रन कराओ थोड़ा सा। मैं पूछ रहा हूँ सब। हाँ बताओ। हाँ ठीक 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 ठीक, थोड़ा रन कराओ ना, हम लोग ट्राई करेंगे। जब एरर आएगा तो आपको खुद पता चलेगा। एरर आना भी अच्छी बात है कोडिंग में, ठीक है। तो ये आपका रिड्यूस का था। मॉड्यूल स्टार्ट कर दूं? अगर मॉड्यूल नहीं स्टार्ट करना आज तो और क्वेश्चंस कर लो मेरे साथ 2 तो, ठीक है, फिर जाओ। एक और हाँ, क्या है कि जिप फंक्शन होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। जिप चाहिए? जिप आपको जानना है? ठीक है, देखो, जिप और इन्यूमरेट दोनों बता दे रहा हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सही, ठीक है। हाँ, लेट्स से वी हैव लिस्ट 1, ओके, वही लेता हूँ, ऊपर से ही ले लेता हूँ। वी हैव लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ओके। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जिप यूज करना चाहता हूँ। और जिप क्या करेगा आपका, एक बार में आपको अंबुज एंड वर्मा एक साथ आपका इन द फॉर्म ऑफ टपल के फॉर्म में स्टोर करेगा। यानी जो आप यहाँ पर कर रहे हो ना, इट विल डू द सेम वर्क वहां पर। लेट्स सी हाउ टू यूज दैट। लेट्स से फॉर आई इन जिप, लूप लगा रहा हूं मैं, देखो लूप से अभी मैं कैसे इसको करता हूँ। लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2, ओके। फॉर आई इन, थोड़ा माइक म्यूट कर लेना तो अंबुज, रिकॉर्ड में भी आ रहा है वो। ओके ओके। फॉर आई इन, सॉरी, फॉर आई इन जिप हो गया। अब मुझे सिर्फ प्रिंट कराना है, प्रिंट आई। देख रहे हो, टपल के फॉर्म में आपका क्या आ रहा है, पूरा अंबुज वर्मा पुलकित सेठी, पूरा नाम, ठीक है, एक एक टपल में दोनों। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है जिप में, बताओ? ये मतलब इंडेक्सिंग के साथ, मतलब इंडेक्सिंग नहीं, 1-to-1 मैपिंग।
इंडेक्सिंग नहीं करता है, इंडेक्सिंग तो आपका इन्यूमरेट मैं ये करेगा। नहीं कह रहा, हाँ नहीं मैं ये नहीं कह रहा इंडेक्सिंग, लाइक जैसे लिस्ट 1 में जो जीरो इंडेक्सिंग पे है, हाँ सेम लिस्ट 2 में जो जीरो इंडेक्स पे है, हाँ मतलब उसको एक साथ टपल में पैक। हाँ, एक साथ टपल में वो ये क्या कर रहा है, ये पैक कर रहा है। ठीक है, तो जिप हाँ, एक्चुअली ये में यही follow है। करता है। ठीक है, तो इसको एक टपल में, इसको दूसरे टपल में। और जब आप करते हो फॉर आई इन जिप, तो उसमें क्या होता है, आई की वैल्यू क्या होगी, एक बार ये टपल होगा फर्स्ट आइटरेशन में, यानी आई फर्स्ट आइटरेशन, फिर सेकेंड आइटरेशन में आपका आई की वैल्यू क्या होगी, ये टपल। और सेम आपको आउटपुट में भी मिल रहा है। ये आपका जिप करता है। जिप का अच्छा एग्जांपल हो सकता है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मैं भेज दूंगा। हाँ बोलो। अच्छा, अगर लेंथ डिफरेंट होती, अगर लेंथ डिफरेंट होता तो उस केस में आपको मिनिमम वैल्यूज, यानी कि अगर 2 है, लेट से अब यहाँ पर मैं राहुल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उस केस में आपका सिर्फ उतनी वैल्यूज ही जाएंगी जैसे कि आपका सिर्फ जहां तक आपका इंडेक्सिंग मैच हो रहा है, दैट इज 0 0 1 1। उसके बाद 2 यहाँ पर है, लिस्ट 1 पे आपका 2 इंडेक्स है, बट इन लिस्ट 2 वी डोंट हैव अ सेकंड इंडेक्स, इसलिए आपका सिर्फ 2 वैल्यूज तक जाएगा। तो अभी मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है। देखो मैप में भी सेम काम हुआ है, देख रहे हो, मैप में राहुल नहीं आया है क्योंकि उसके लिए उससे रिलेटेड इंडेक्स नहीं था लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में। और वही चीज आपका जिप में भी होगा। लेट्स रन दैट। देखा, मैंने रन करा दिया इसको, बट स्टिल वी हैव दिस अंबुज वर्मन पुलकित सेठी, नॉट राहुल। समझ रहे हो? yes. जिप में क्या होता है आपका, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसे ही फॉलो करेगा वो। Okay. ठीक है। अच्छा, 3 वैल्यूज ले सकते हैं। अभी तो हमने लिस्ट 2 लिया है, लिस्ट 3 भी ले लें, तीनों को जिप कर देते हैं। लेट्स सी अभी क्या मिल रहा है। हाँ हाँ कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ले लो, चाहे जितने मर्जी लिस्ट ले लो, कोई वो हाँ। तो मतलब इंडेक्स चेक करेगा ना, इंडेक्स पे वैल्यू है ही है। समझ रहे हो? तो अब मैं आपको बताओ, अब अगर मुझे आउटपुट इस तरीके से चाहिए, माई लिस्ट इक्वल्स टू आई हैव सम वैल्यूज, ठीक है, ये आपको मैंने इनपुट दिया। अब मुझे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए मुझे इन द फॉर्म ऑफ, बहुत इजी बताऊं अगर आपको, तो आप इस तरीके से आउटपुट दे दो मुझे। 0 अंबुज, 1 पे आपका है राहुल, 2 पर है आपका पुलकित, लाइक दिस। आउटपुट मुझे विद देयर इंडेक्सेस, उनके इंडेक्स के साथ उनका नाम चाहिए। कर सकते हो यूजिंग इन्यूमरेट। ओके, अगर मैं यही चीज आपसे कह दूं कि मुझे की के साथ वैल्यूज दो, यानी डिक्शनरी मुझे चाहिए, एंड डिक्शनरी में आपको किस तरीके से वैल्यूज चाहिए, एट जीरो की आई हैव सम वैल्यूज, लेट्स से अंबुज, लाइक दिस। ठीक है, 1 की, 1 पे आपको क्या चाहिए, राहुल, लाइक दिस। इस तरीके से आउटपुट दे पाओगे? चलो पहले इन्यूमरेट बता देता हूं, तो इसको करना आप असाइनमेंट में दे दूंगा, लेकिन ट्राई जरूर करना कल, ताकि चेक करूं मैं। तो अभी आप क्या करोगे, फॉर आई इन इन्यूमरेट लगा दो। ओके, लाइक दिस। इन्यूमरेट किसे इन्यूमरेट करना चाहते हो आप, माई लिस्ट के एलिमेंट्स को, माई लिस्ट। समझ रहे हो? तो अब आपका क्या होगा, यू विल हैव देयर इंडेक्स वैल्यूज ऑल्सो। अब मैं करूं प्रिंट आई, अब बताओ आउटपुट प्रिंट होगा या अभी एरर आएगा? आउटपुट डोंट नो सर, पता ही नहीं अभी तो कैसे बताया। तो इस केस में सिर्फ रन करो, विल गेट द टपल आउटपुट। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए था इंडेक्स का, तो मिल जाता है इंडेक्स। देखो आपको इस टपल पे क्या मिल रहा है जरा बताओ, इंडेक्स वैल्यू और नाम। क्या मैं सिर्फ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो भी आ रहा है, मैं 2 वैल्यूज पास कर सकता हूँ, फॉर आई कॉमा जे इन इन्यूमरेट, लाइक दिस। और अगर मैं प्रिंट आई करूं तब क्या आएगा, लेट्स डू दिस आल्सो, 0 1 2। अब अगर मैं प्रिंट जे करूं तो
फिर वो नेम्स आ जाएंगे ओनली। ठीक है, इन्यूमरेट पे आप ऐसे कर सकते हो। ठीक, यही चीज हम जिप पे भी कर सकते थे, इस पे तो आइडिया ही नहीं गया। लेट्स सी आई कॉमा जे कॉमा के, ठीक है। और अगर मैं जे करता तो क्यों मिल रहा है हमें ये सारी वैल्यूज? क्योंकि टपल के फॉर्म में आउटपुट मिल रहा था हमें, और टपल पे अपना वैल्यूज है, इंडेक्सिंग है आई जे के अगेन। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ के करूँ, वी विल हैव ऑल दोज वैल्यूज। अगर मैं यहाँ आई कॉमा जे कॉमा के करूँ एक साथ, तो वी विल गेट ऑल द वैल्यूज लाइक दिस। सेम गोज हियर ऑल्सो, आई कॉमा जे। अब देखो आपको हिंट यहाँ से मिल गया है कि आप डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हो। यू हैव योर कीज एंड यू हैव योर वैल्यूज, तो आप इसको करके आओगे डिक्शनरी में। आई कॉमा जे के जगह आई कॉलन जे कर दो, आई कॉलन जे, ओके। और उसको मतलब उसका डेटा टाइप चेंज कर दो, डिक्ट कर दो, हो गया। आई कॉलन जे कर दूं और क्या कर दूं? डेटा टाइप प्रिंट, प्रिंट की जगह मैं कर दूं डिक्ट, डन। नहीं और उसको प्रिंट भी तो करा दो। अच्छा, प्रिंट भी करा दूं, आई कॉमा प्रिंट भी करा दूं, प्रिंट डिक्ट डन। अब एरर आ रहा है, बताओ क्या है? इनवैलिड सिंटैक्स आई जे। थोड़ा सा और आपके हिसाब से कर देता हूँ, इसको मैं करली ब्रैकेट दे दूं क्या, और क्या दे दूं? नहीं वो तो मतलब चेंज कर रहे थे तब तो अभी भी सिंटैक्स है। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट दे देता हूँ। हाँ, वो तो कोई फर्क नहीं होगा ना, डेटा टाइप चेंज में तो स्क्वायर ब्रैकेट ये है तो और गड़बड़ है। ठीक है, अभी बताओ क्या करना होगा? अभी क्या करना? आपको क्रिएट करना होगा एक डिक्शनरी, ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी। हाँ, उसमें चेक करो कि वो की है या नहीं। अगर की है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करना है, बस आपको इंसर्ट कराओ आई और जे। हाँ, आई और जे आप क्या करोगे, इंसर्ट करा दो बस, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो बताओ, फॉर आई कॉमा जे आप करो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, आई कोलन जे फॉर आई इन आई कॉमा जे। रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा नेम चेंज कर दूं ताकि कंफ्यूजन हो की। और इसमें क्या आ रहा है आपका वैल्यू, ठीक है। सो आई कॉमा आई कोलन जे फॉर आई इन की and j in value. Will it work? For I in key and j in value. Int object is not substitutable. I and j for I comma j in नो, आप अगर कंपेयर करके करोगे तो तुरंत बना ले जाओगे। आप इसको ना उससे करो, लूप लगा के। लेट्स से अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ। क्या करो आप, ये क्रिएट है एम्प्टी डिक्शनरी, डिक्ट माई एम्प्टी डिक्शनरी। अब बताओ क्या करोगे, फॉर की कॉमा वैल्यू इन इन्यूमरेट। अब क्या करना है आपको, माई डिक्ट डॉट या ओनली सीधा कर देते हैं ना, माई डिक्ट कीज इक्वल टू वैल्यू। वेरी गुड, ठीक है। क्या करोगे यहाँ पर की, और की में जो आ रहा है वैल्यू उसको कितने की इक्वल करना है, इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। यही करना है, चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से ही एम्प्टी है। की आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, की आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, उसे मैं इंसर्ट करा देना उसमें। ये हो गया, लूप खत्म होने के बाद मैं प्रिंट भी कराना चाहता हूँ, तो क्या करना होगा, प्रिंट माई डिक्ट,
ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, की को ले रहा है ना, वहाँ पे इंडेक्सिंग पास लास्ट वैल्यू इसने लिया है स्ट्रिंग, यहाँ पर आपको करना होगा की, नाउ इट विल वर्क। ठीक, हाँ सही है, सही है। हमने स्ट्रिंग वैल्यूज ही दे दिया, की पे जो भी वैल्यू है लास्ट वो सिर्फ जा रहा है, वेरिएबल है ना की हमारा, तो आप डिक्शनरी इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन यूज करके नहीं कर सकते इस चीज को? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करा जाए? इसमें आप वो लिखो ना, मतलब क्या लिखो, की वैल्यू ले रहे हैं ना। हाँ, तो मैं अब एम्प्टी डिक्शनरी भी नहीं लूंगा, एम्प्टी डिक्शनरी मुझे यूज नहीं करना। मैं बताओ, की कॉलन वैल्यू, की कोलन वैल्यू हाँ, फॉर की वैल्यू हाँ, इन एनुमरेट माय लिस्ट। वेरी गुड, एनुमरेट माय लिस्ट, डन। हाँ हाँ, इसे कमेंट कर देते आ जाना चाहिए। अरे आएगा, कमेंट कर दो, कैसे नहीं आएगा, ये प्रॉपर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, एक लाइन पे आपका हो गया, तो ये कमेंट भी रहेगा, अगर आपको चाहिए तो उस तरीके से करना, या दोनों ही लिखो। हाँ, ये ग्रुप में शेयर कर देना। अरे आपके जाते ही मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अरे बिल्कुल। ठीक है, दोनों से आ रहा है। ठीक है, डन। पुलकित आप हो अभी? हाँ सर, बस मैं आपको बोलने ही वाला था कि सर प्लीज थोड़ा सा ठीक है, हो गया, कल से मॉड्यूल करेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज आज जो भेजूंगा प्लीज करना आप लोग। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस जो थोड़ा पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वीक। हाँ, नेक्स्ट वीक। अच्छा, कल नहीं करना है क्लास? मैं आपको बताऊं, कल की मेरी एक स्टूडेंट होंगे राखी सर, कल का किसी का कुछ नहीं पता। चलो, कल कहते रहे। क्या कह रहे हो बताओ? हेलो, हाँ तो कल तो ऑफ है ना? हाँ ठीक है, पॉसिबल नहीं होगा, कल ऑफ है, अब कोई आएगा कोई नहीं आएगा, इसलिए क्या मतलब है। मैं तो ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाकी होगा कैसे, उत्कर्ष नहीं होगा फॉर श्योर। हाँ, इसीलिए ना। ठीक है, कल ऑफ ही रहेगा फिर। ओके, और सुनो, आप लोग सुनो, थोड़ा सा किसी दिन